ठीक है। Well, in this session, as I have mentioned to you, that union government programs and schemes, so we are going to cover in a question format. So in this connection, the first question is that which of the following statements is true regarding PM Gati Shakti National Master Plan? So these are your options. It aims to enhance multimodal connectivity across the country. It is exclusively focused on transportation sector. The plan was launched in 2024. It is a state-specific initiative. So these are your options. And the right explanation is that the PM Gati Shakti National Master Plan aims to enhance multimodal connectivity by integrating various transportation modes, including roads, railways, airports, and ports. Statement B, which is a false statement. Statement B is here. It is exclusively focused on transportation sector. No, it is not exclusively. Just because of the word exclusive is there, while transportation is a major component, the plan also encompasses various sectors like logistics, utilities, infrastructure, and development. Infrastructure development. Next, the plan was launched in October 2021, not 2024. Statement D. It is a so this is the October 2021. It is a national initiative aimed at improving infrastructure at the national level, not confined to specific states. So it's a PM Gati Shakti. So PM Gati Shakti National Master Plan, it is a national plan. The गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान जो है वही हम लोग भी कर रहे हैं. उसी में पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में बताइए. ठीक है. So it aims to enhance multimodal connectivity across the country. It is exclusively focused on the transportation sector. This is a wrong statement. The plan was launched in 2024. Again, this is a wrong statement. 2021. It is a state-specific initiative. No, it is a national initiative. So this is explanation. Kindly just note down. जितने प्रोग्राम्स और स्कीम्स उनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर दिया गया. इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो हैं आप लोग के एग्जाम में आएंगे.
तो ये जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए हो जाएगा। इतना फैक्ट्स भी अगर आप याद करना है तो ये काफी मदद मिलेगा आपको एग्जाम में आंसर को निगेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री आवास योजना एम्स टू, प्रधानमंत्री आवास योजना एम्स टू, इसका क्या लक्ष्य है? तो प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर, establish smart cities, promote housing finance for rural areas exclusively, सी आप कह रहे हैं, सी ऑप्शन, अच्छा, फोकस सोनली ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट, नहीं, सी इज एक्सक्लूसिव। देखिए जहां वर्ड आ जाएगा ना एक्सक्लूसिवली, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वहां पे समझ जाइएगा। तो स्टेटमेंट ए क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड प्रमोटिंग हाउसिंग डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, ये क्या स्टेटमेंट सेकंड वाला था कि while PMAI contributes to urban development, it is not specifically aimed at establishing smart city, केवल स्मार्ट सिटीज को लेके ये नहीं है। फिर क्या है कि PMAY encompasses both urban and rural housing, although the rural variant is referred to as PMAI ग्रामीण। ठीक है, और स्टेटमेंट डी क्या है कि PMAI does not focus on commercial real estate, its primary goal is to facilitate affordable housing for individuals and families। ये जो है मतलब कि एक व्यक्ति के तौर पे, एक परिवार के तौर पे क्या है कि कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग को ये किया जाए, यही प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसके वजह। स्टेटमेंट ए जो है इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लें और इसको नोट करते भी चलिए ताकि बहुत कुछ याद भी होता चला जाए। सॉरी, ठीक है, आगे बढ़े। Which scheme is designed to support small farmers in India by providing them with direct cash transfers? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, ध्यान से पढ़िए इसको। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किसानों को देने वाला इसमें से कौन सा स्कीम है? कौन कौन नहीं हो सकता है? बी ऑप्शन देखिए, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम हो सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो सकता है, सम्मान निधि। निधि मतलब क्या होता है? वही कोर्स देखिए, ट्रू, द किसान सम्मान निधि स्कीम प्रोवाइड्स एलिजिबल स्मॉल फार्मर्स विद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स ऑफ 6,000 रुपए। कितना दे रहा है कैश ट्रांसफर जो आपका? ये आपको 6,000 पर ईयर टू सपोर्ट देयर इनकम। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह बाकी जो ऑप्शंस हैं उन पे भी आप लोग ये तैयार कीजिए। जैसे ई नैम क्या है, इज ए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज फैसिलिटेटिंग फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू बायर्स, ये आपका हो गया। और सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, ये फोकसेस on assessing soil health, providing improved farming practices, not cash transfer. ठीक है, ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ, अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस्ड सेवरल चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एनईपी, इसके विषय में ये जितने टर्म्स, ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ऐसे ही आप आगे जैसे कि देखिए ये आपका कि ई नाम हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, किसान सम्मान निधि योजना, इन सब परियोजनाओं योजनाओं के विषय में और डिटेल में आप लोग को, जैसे कि क्या है, क्या इसका प्रोविजन है, कौन से मिनिस्ट्री को जो है ये एडमिनिस्टर कर रही है, ये सब अगर आप ध्यान रखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। केवल इनके बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, इतना ही जान जाइए कि ये क्या परियोजना है, किन के लिए है, कौन टारगेट ऑडियंस है, बस ये कहते ना कि उस चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिए। और ये हार्डली मुश्किल से 20, 25 या 30 इससे ज्यादा नहीं है, इसमें से कोई ना कोई एक आएगा तो आप आसानी से कर जाइएगा। अगर दो भी फैक्ट्स अगर आपको मिल जाए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। C. It introduces a 4-year undergraduate program in all disciplines. नहीं, partially true but misleading. NEP suggests flexibility in undergraduate program. तभी तो 2 courses लोग कर रहे हैं ना, including 4 years degrees, but it does not mandate it for all discipline. पहला क्या है? Yes, 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education to 50% by 2035. इसको नोट कीजिए तो पहले। ये फैक्ट्स जो है बहुत जरूरी है, इसीलिए सारे स्टेटमेंट्स पे हमने फैक्ट्स बनाया। सही है तो सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, चलिए ठीक है। Which of the following statements is true about Atmanirbhar Bharat initiative?
कौन सा सही है? क्या हो गया, कहाँ इतना लेट हो गया हैं? हो गया था। कौन सा सही होगा? Which of the following statements is about true about Atmanirbhar Bharat initiative? B. It aims to promote self-reliance in various sectors of the economy. क्या लग रहा है आपको? मतलब समझ रहे हैं ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव लिया गया था, है ना, ये जो शुरुआत हुई थी, इसके विषय में कौन सा ये सही है? ये कह रहा है कि ये केवल फोकस करता है कृषि क्षेत्र पे, सही है। दूसरा कह रहा है कि ये जो है प्रमोट कर रहा है सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आप अपने ऊपर क्या करें, एक आपका एक निर्भरता आपकी हो इन वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो है क्षेत्रों में। इट वाज लॉन्च्ड इन 2024। इट प्राइमरली टारगेट्स अर्बन डेवलपमेंट। यही तो क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन क्या है? गलत है। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर इनिशिएटिव नॉट लिमिटेड टू दिस सेक्टर। ये केवल इसी से लिमिटेड नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? आत्मनिर्भर भारत एम्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलियंट by promoting domestic manufacturing, innovation and economic reforms across various sectors। जितने सेक्टर्स हैं इन सब सेक्टर्स को लेके ये बनाया गया आत्मनिर्भर भारत। ऐसा नहीं कि केवल ये कृषि से ही संबंधित या उसी क्षेत्र से संबंधित। हाँ, ये कब लॉन्च हुआ था? 2020 में। इट टारगेट्स मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, नॉट जस्ट अर्बन डेवलपमेंट। इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? ये कब लॉन्च किया गया था? कब किया गया था? मई 2020 में, ठीक है। और ये किस पे निर्भर करता है, क्या प्रमोट कर रहा है? तो सेल्फ। बस यही एक दो आपको फैक्ट्स मिला ना, आप इस पे क्वेश्चन कर जाइएगा। हो गया? तो कौन कौन सा अभी तक योजना हम लोग पढ़ लिए? प्लान बताइए तो एक एक करके। पीएम गति शक्ति, क्या था वो? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटी से संबंधित था। कब लॉन्च किया गया था? हाँ। उसके बाद क्या था पढ़े हम लोग? प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना। तीसरा। चौथा क्या था? आत्मनिर्भर। वेरी गुड। एनईपी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। अब ये 4-5 जो हो गए ना, इन टॉपिक्स को एक बार फिर से पढ़िए, फिर से और क्वेश्चंस कहां से क्रिएट किया जाएगा? जो इसके तथ्य हैं बस आप उनको बनाते जाइए, ठीक है। चलो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज एम्ड एट, बताइए। ऑप्शन से ही बन जाएगा ये। किससे? promoting solar energy in urban areas, offering clean cooking fuel to rural households, enhancing women's employment in rural areas, providing free housing to urban poor। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। बी ट्रू है ना। तो इसमें क्या है कि इट प्रोवाइड्स एलपीजी। एलपीजी क्या होता है?
liquefied petroleum gas, connections to women from BPL households to reduce health hazard from traditional cooking methods. This scheme is not specifically about solar energy. फिर उसके बाद से क्या है कि while it may indirectly enhance women, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है, इसको नोट कर लीजिए. प्रधान अभी ऊर्जा योजना जो आप लोग अभी इसमें बजट में भी देखे थे, सोलर उसको करके, और आईएसए का इंडिया क्या है, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स है यहीं पे. इस बार जो बजट में आया है वो भी स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है, और ये तो है ही है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. Which scheme aims to provide financial assistance to the elderly and destitute women? कौन कौन सा नहीं होगा वो सोचिए. किसान वाला नहीं होगा. चलो ये भी नहीं होगा. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी नहीं है. एक बच रहा है, इसको नोट कीजिए. This scheme provides financial assistance to elderly individuals. किसको दिया जा रहा है, जो इंडिविजुअल्स जो है उम्र उनकी जो है ज्यादा, एल्डरली इंडिविजुअल, एंड डेस्टिट्यूट वुमेन. डेस्टिट्यूट वुमेन किसको बोलते हैं, जिसका कोई घर नहीं है, निराश्रित जिसको बोलते हैं, इसका कोई आश्रय नहीं है ना. तो डेस्टिट्यूट वुमेन टू एंश्योर देयर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी. ऐसे लोगों का जिनका जैसे मान लीजिए कि कोई घर नहीं है, तो उनको क्या एक पेंशन करके आप उसको फिनेंशियल असिस्टेंस देते हैं. ठीक है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, बताइए. बहुत इजी क्वेश्चन है. National Health Mission to strengthen healthcare systems in rural and urban areas. Confirm. To provide free healthcare to all citizens. B option. B true है. The mission aims to strengthen healthcare delivery system focusing on undeserved areas. Clear है ना. तो correct answer क्या है, B. While disease elimination is a goal, it is not specifically set for 2022 under this mission. ठीक है. Establishing medical colleges is not the primary objective of National Health Mission. While it aims to provide affordable health care, it does not guarantee free health care for all. ठीक है. B option.
ठीक है। द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज डिजाइन टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स। अब इसमें क्या है, द स्कीम प्रोवाइड्स क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स अगेंस्ट नेचुरल क्लैमिटीज, पेस्ट एंड डिजीज। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि डिजीज भी है और नेचुरल क्लैमिटीज और पेस्ट जो है ये भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Which scheme focuses on enhancing the digital infrastructure in rural areas? PMAY Grami. Enhancing the digital infrastructure in rural areas. स्किल इंडिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, इसको नोट कीजिए। द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है। Skill India focuses on enhancing skills for better employment opportunities, not specifically on digital infrastructure. ऐसे ही एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करके कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कीजिए आप लोग। The One Nation, One Ration Card scheme aims to C option, abolish the public distribution system. D option, distribute cash benefit instead of food grains. B option, enable portability of ration cards across states. B, enable portability of ration cards across states. Enable portability of ration cards across states. One nation, one ration card, ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव था। The scheme allows beneficiaries to access their ration from any fair price shop across the country, ensuring food security. आप कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि एक जो खास, हाँ हाँ, जहाँ आपका कार्ड बना हुआ है जन वितरण से, नोट कर लीजिए।
The Beti Bachao, Beti Padhao scheme primarily aims to provide scholarship exclusively for girls, facilitate women's entrepreneurship, increase the birth rate of girls. हाँ, बी जो है वही सही आंसर है. द इनिशिएटिव promotes the education and welfare of girl child and aims to combat gender bias. ठीक है. Which of the following statements about National Livelihood Mission is true? बताइए. It aims to reduce poverty by promoting self-employment and wage employment. ये आप कह रहे हैं. It focuses solely on urban employment. It was launched in 2024. It is limited to agricultural livelihood. B is the right choice. It aims to reduce poverty by promoting self-employment and wage employment. ठीक है. तो the mission seeks to enhance livelihood opportunities through सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी ये फोकस करता है और स्किल डेवलपमेंट पे भी. इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू द पुअर. दोनों लग रहा है.
बी ऑप्शन जो है वो स्ट्रेंथन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अनडिजर्व एरियाज, ये जो है ऑप्शन। इसमें देखिए कंफ्यूजन कहां से हो सकता है, ये जो सुरक्षा वर्ड है ना, तो इसको जो है हेल्थ इंश्योरेंस से, हाँ, जो कि ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि स्ट्रेंथन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अनडिजर्व्ड एरिया, इसको नोट कीजिए। ये जो स्कीम्स हैं इनका ये जो है मेन एम है, इसके साथ साथ जो है और भी इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिले को नोट डाउन कर लीजिए, जो क्वेश्चन इसके बाद नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा कि आप आसानी से क्वेश्चंस कर ले जाइएगा, कुछ भी अगर इसका 3 4 5 भी फैक्ट्स याद रहा तो ऑप्शन आसानी से निकल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्राम से जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा ट्विस्ट उसमें नहीं रहता है, वो सीधे अवेयरनेस को ही ढूंढना जाता है। आज जो फेमस प्रोग्राम है उसमें आपको घुमा सकता है, नया रहेगा तो उसमें बस आपको उसके फैक्ट्स के बारे में मालूम है तो आंसर निकल जाएगा। It aims to improve healthcare infrastructure in rural and undeserved areas. ठीक है। Which of the following is not a component of Skill India mission? बताइए। सर एम्प्लॉयमेंट गारंटी हाँ? नॉट कौन सा आप कह रहे हैं? सी बोल स्किल सर डेवलप करना है ना, बिजनेसशिप हो गया, नेशनल स्किल हो गया, स्किल डेवलपमेंट। सी, सी ट्रू है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स आर सेपरेट इनिशिएटिव सच एज एमजी नरेगा हो गया आपका, या नॉट ए पार्ट ऑफ स्किल। हाँ, अब आइए एक एक करके। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज ए की कंपोनेंट ऑफ स्किल इंडिया, इसको नोट करते चलिए आप लोग। स्किल इंडिया जो है ये देखे एडिंग अप द नेशनल स्किल इंडिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटीग्रल टू द मिशन इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा हो गया द मिशन इंडीड फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट इन वेरियस इमर्जिंग सेक्टर। ये केवल कोई एक खास पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर नहीं है स्किल इंडिया में, ये हर एक सेक्टर में। जैसे कि डिजिटल इंडिया आपका था, वो क्या था, वो कई सारे जो, इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहते हैं, है ना। हाँ, नेशनल लेवल पे तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कई सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर को, आपका इकोनॉमी को, आपका फिनेंस सेक्टर को, सबको ये क्या कर रहा है, डिजिटाइज करना। आपका एजुकेशन हो गया, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे आप कीजिएगा। ठीक है। The mission indeed focuses on skill development in various emerging sectors। ये क्या कर रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर्स हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, उसमें ये क्या कर रहा है, ये फोकस कर रहा है। ठीक है। जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जो था वो एक सेपरेट इनिशिएटिव था, जैसे कि एमजी नरेगा आपका था ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना। अब ये पहले स्कीम था, फिर बाद में उसको क्या बनाया गया, नरेगा एक्ट जो है ये बनाया गया। ठीक है। और उसके साथ ये क्या, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज ए की कंपोनेंट ऑफ स्किल इंडिया। ये जो क्वेश्चन था आपका, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्किल इंडिया मिशन। चलिए नेक्स्ट। सी,
The eNAM aims to create a unified national market for agricultural commodities by connecting various state markets. ठीक है. The Rural Infrastructure Development Fund is aimed at ठीक है. इसको नोट कीजिए. The fund is aimed at financing rural infrastructure projects, enhancing connectivity and improving facilities. अर्बन को ये नहीं टारगेट करता है. It does not focus on establishing banks. While tourism can benefit from infrastructure improvements, it is not the fund's main focus. ठीक है. The प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि scheme provides subsidized seeds and fertilizers. ठीक है. नोट कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे इसको. कहाँ ध्यान है आप लोग का? आधा घंटा लेट आइएगा तो कहाँ से जानिएगा कि कैसे बताएं. फिर PM Kisan provides eligible farmers with direct cash transfers of 6,000 per year. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. ठीक है. Which program focuses on education of marginalized and underprivileged children? एजुकेशन ऑफ. क्वेश्चन पढ़िए ठीक से. मिड डे मील स्कीम क्या है? खाना. सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. सर्व शिक्षा अभियान aims to provide quality education to all children, particularly those from marginalized background. Midday meal scheme provides nutritious meals, but it is not solely focused on marginalized children. ये सब लिखिए, ये जितना लिखा हुआ है चारों. हाँ.
हो गया? चलिए, द पीएम आयुष स्कीम एम्स टू, आयुष क्या है? नहीं, वो आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, ये सबको मिला के क्या बना? एक आयुष मंत्रालय भी बना। पीएम आयुष स्कीम एम्स टू promote yoga and alternative medicine, provide healthcare to women and children, enhance the quality of education in Ayurveda, focus on urban healthcare initiative. है? A और C आप लोग कह रहे हैं? A is the right answer. The PM Ayush promotes traditional Indian systems of medicine including Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy. सर ये तो पढ़ाई होता है ना, अभी जिसका नीट में 500 या 550 नंबर है, तो वो तो आयुष के ही थ्रू इस 3 चीज में एडमिशन लिया जा रहा है। हाँ, तो वो अलग अलग वो है ही है, ये पुराना आपका मेडिसिन का मंत्र। हाँ, वो जो पढ़ाई पढ़ी है होम्योपैथ से, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, तो लाइव टेलीकास्ट ही आ रहा है यहाँ पे? नहीं, बढ़िया, ठीक है, अच्छा। तो इससे बड़ा स्क्रीन है सामने वाला, वो नहीं दिखाई देता है? अच्छा, क्या बात, मतलब कि सिर भी नहीं उठाना है? क्या बात है, ये है न्यू इंडिया हमारा। तो वही बात हो गई कि एक भीड़ में पूछा एक आदमी कि भाई इसमें सबसे बड़ा आलसी कौन है? सब लोग हाथ उठा दिए, एक नहीं उठाया। हाँ, तो उसको आंसर मिल गया सामने वाले को। अब लोग कहते रहे कि नहीं हम बड़े आलसी हैं, तो लगे नहीं 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 नहीं। और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका ये कहना भी है कि हम अपना जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होता है, अपने सबसे आलसी आदमी को जो है वो कोई ना कोई अलग तरीका वो ढूंढ ही लेगा। लेकिन सही है, गुड। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये लागू है ना, ये स्मार्टफोन? एग्जाम में नहीं ले जाना। हाँ, अगर फोन बढ़िया एक होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो गए। नहीं, ओपन बुक तो एक अलग है, वो एक अलग सिस्टम है। नहीं, हम लोग के मैनेजमेंट कॉलेज में ना बहुत सारे ऐसे पेपर होते थे जो ओपन था, लाइब्रेरी, आप इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कुछ। इसके बाद भी काफी डिफिकल्ट होता था एक्चुअली, वो रियल लाइफ सिचुएशन से, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग का ही है या फिर उसमें आपको बनाना पड़ता, तो वो डिफिकल्ट था, वो एक अलग एग्जाम होता है। वो इवन आईआईटीज वगैरह में भी बहुत सारे पेपर जो है वो होते हैं, वो अलग। यहाँ जो कह रहे हैं हम कि जैसे एग्जाम में अलाउड है, देख के आप लोग जो लिख ले रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया इंक्लूडिंग इसके बारे में। ये क्वेश्चन पूछा जाता था पहले 1-2 साल पहले तक कि आयुष है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्मली लोग ये भूल जाते थे, ये सिद्धा और यूनानी जो है इसमें। द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू, ये बताइए। Improve digital infrastructure across the country.
हाँ, while it may indirectly improve literacy through digital means, it is not primarily about literacy. ठीक है, it does not specifically focus on establishing new educational institutions. While it promotes digital access, providing free internet access is not its primary focus. ठीक है, तो ये आप लिख लें. ठीक है, तो काफी कॉमन है ये बताइए. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act provides 100 days of guaranteed wage employment in a year. हाँ, इसको नोट कर लीजिए चाहे तो. ठीक है, which of the following statement is true regarding PM Kisan scheme? Direct cash transfers to farmer launched in 2024 or not? Huh? वो सब नहीं, जो important है दो बार गलत हो गया, ये तीसरा बार सही. हाँ, इसको नोट कीजिए. False, it was launched in December 2020. ये पीएम किसान स्कीम है. क्या क्या फॉल्स क्यों लिखा रहता है? फॉल्स इसलिए कि स्टेटमेंट सी फॉल्स है. इसका रियल आंसर. हाँ, ये चारों के बारे में इसलिए तो कलम क्या बता रहे थे कि केवल क्वेश्चन नहीं, उसके प्रोबेबल और कितने जो आंसर हो सकते हैं. तब तक क्या देख रहे थे आप लोग? स्टेटमेंट डी फॉल्स है. द स्कीम डज नॉट मैंडेट एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस दैट इज कवर्ड अंडर सेपरेट. इट मैंडेट्स द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस. यही तो कह रहे हैं. इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसको नोट करने के लिए ना, कि जो दूसरा है वो भी आप करते जाइएगा. एक एक लाइन लिखना है सबके बारे में. इतना ही से क्वेश्चन बन जाएगा. कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. ठीक है. द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स टू assess soil health and provide recommendations. ठीक है. Which scheme focuses on the welfare and rehabilitation of transgender persons? ऑप्शन से ही बन जाएगा ये. The national policy for transgender person aims to ensure their welfare, rehabilitation and equal rights. ठीक है. Is designed to enhance women's safety and enhance women's safety and empowerment through various programs. इसको नोट कर लीजिए.
ठीक है। The National Policy on Education 2020 aims to means the girls enrollment ratio in higher education. confirm, Abolish the tradition. abolish the traditional school system. Yes. परंपरागत जो है स्कूली व्यवस्था को ध्वस्त करना, एबॉलिश करना, उसका उन्मूलन करना, ये मतलब उन्मूलन से उसको समझ नहीं आता, मतलब उन्मूलन का मतलब एक समान पाठ्यक्रम है। implement a uniform curriculum across the country. तो क्या हो सकता है चार में से? डी, हाँ? डी is the right answer. डी false है. True क्या है? The policy aims to increase the gross enrollment ratio in higher education by 2020. हाँ, एक क्वेश्चन आया था इस पर, उसी का दूसरा वर्जन है। बनाइए, इसको लिखिए, नोट कीजिए। The policy aims to reform, not abolish the traditional school system. ए ऑप्शन पढ़िए और उसको लिख भी लीजिए। हाँ, पार्शियली। ठीक है, क्लियर है। National Policy on Education 2020 aims to abolish the traditional school system. नहीं, रिफॉर्म करना, increase the gross enrollment ratio in higher education. क्या टारगेट है? 50% by 2035. अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बढ़ाना जो इनका टारगेट है, कब तक लक्ष्य ये लोग रखें? 2035 तक। 30 नहीं, 35। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, which program is specifically aimed at the conservation and promotion of traditional arts and crafts? Kumbh Mela initiative, handicrafts and handlooms, हाँ? डी, पीएम, वो क्या है पीएमएआई ग्रामीण योजना का नाम? ये बी और सी थोड़ी लग रहा है, सबने शब्द बोल दिया। स्कीम नेम नहीं ना लग रहा है, ये बोल रहा है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, कुंभ मेला प्रोग्राम नेम नहीं लग रहा है, प्रोग्राम नेम बी और सी लग रहा है। अच्छा, इसको तो प्रमोट कर रहा है सर, handicraft. The handicrafts and handloom scheme is specifically aimed to at conserving and promoting traditional arts and crafts. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स जो है ये एक प्रोग्राम है, ये एक स्कीम है, समझ रहे हैं ना, जिसमें क्या करना है, ये प्रमोट करना।
इस स्कीम का नाम ही है ना, इसीलिए इसको नोट कीजिए। The handicrafts and handloom scheme is specifically aimed at conserving and promoting traditional arts and crafts. अब ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अभी बताए भी थोड़ी देर पहले, रूरल एरिया। दिस स्कीम प्रमोट साइंटिफिक कल्चर एंड ट्रेडिशनल आर्ट। कौन सा? ये स्कीम फॉर प्रमोशन एंड कल्चर ऑफ साइंस। तीसरा, कुंभ मेला इनिशिएटिव फोकसेस ऑन रिलीजियस टूरिज्म। चारों को लिखिए इसको। और इसका नाम आप लोग को मालूम है क्या? स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। हो गया? सबका कम से कम 2 से 3 रिवीजन चाहिए, जितना स्कीम आप लोगों ने पढ़ा है। और इसके बारे में जो भी फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स हो सकता है, क्या उसमें योजना है? हाँ, तो ये अधिकांश इसमें नेशनल लेवल का है। लॉन्च कब हुआ, कोई फिक्स टारगेट है क्या, किसको ध्यान में रख के ये बना गया है, कौन सी मिनिस्ट्री है? बहुत सारे पायलट स्कीम्स होते हैं, या बहुत सारे अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं। अम्ब्रेला स्कीम मतलब कि कई मिनिस्ट्रीज मिलके उनको जो है वो देखते हैं, है ना। Ensuring affordable housing for the urban poor, डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज नहीं होगा, प्रमोटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। The scheme aims to provide affordable housing to the urban poor, ensuring access to housing facilities. चलिए, हो गया आपका। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हमको कवर कर दिया गया। तकरीबन 30 के करीब इसमें होंगे प्रोग्राम। ये आपका यही पहला। आप लोग लेट आए काफी लोग ना, एक बार फिर से देख, हाँ एक बार फिर से देख लीजिए क्या होगा इसमें। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। हाँ,
इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लें। आधा आधा घंटा लेट आइएगा लोग तो कैसे काम चलेगा? आते आते लेट का क्या मतलब हो जाता है? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। गति शक्ति ये पढ़ रहे हैं हम लोग, मल्टी मॉडल जो है। कहाँ से? तो साइकिल से ही आते हैं तो 1 घंटा तो पहले जो आपका जानते हैं कि आपका डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो थोड़ा उसके लिए प्लान करना होगा। 6:30 7 बजे निकलिए। हाँ 7 बजे निकल के तो आया ही जा सकता है। वो तो है ही। ठीक है, फिर ये था प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो देख ही लेते आप लोग। Which scheme is designed to support small farmers in India by providing them direct cash? किसान सम्मान निधि, कितना 6,000 रुपया दिया जाता है। फिर ये हाँ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में क्या था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो आपको 50% 2035 तक करना है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में क्या था, कब ये लॉन्च कब हुआ था? कब लॉन्च हुआ था? 18 कहाँ से? 2021 मई 20 में। 18 उसका पढ़ रहे हैं अभी आप, लॉन्च प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाँ सोलर एनर्जी है। कुकिंग फ्यूल रूरल हाउस होल्ड, जिसमें एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है बीपीएल को, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही बताया सब। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट वुमेन, कौन सा है इसमें? हाँ ये बी हो गया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, गलत है वो। द मिशन एम्स टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम फोकसिंग ऑन अनडिजर्व्ड एरिया, यह भी थोड़ी देर पहले किए हम लोग। फसल बीमा योजना, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, कौन सा है? डिजिटल इंडिया। इसके आगे तो किए ही आप लोग सब याद। चलिए कुछ बिहार गवर्नमेंट का कुछ स्कीम लिखिए तो। देखिए पहले 7 निश्चय,
सात निश्चय पहले पहला वाला लिख लीजिए। हाँ ठीक है, सात निश्चय फॉर डेवलप्ड बिहार अंडर द प्रोग्राम ऑफ, सात निश्चय फॉर द डेवलप्ड बिहार, हाँ सात निश्चय फॉर द डेवलप्ड बिहार फॉर द under the program of good governance 2015 to 2020, 2015 से 2020 तक, ये क्या था? सात निश्चय। सात हाँ 2015-20 in mission mode। एक एक करके लिख लीजिए, क्योंकि ये सात निश्चय 2 भी आ गया, इसलिए बस इसके बारे में एक अवेयरनेस होना चाहिए। आर्थिक हल, युवाओं को बल, हाँ जो सात निश्चय था वो क्या था? आर्थिक हल, युवाओं को बल। इसमें स्किल डेवलपमेंट या फिर उसमें और क्या था, एजुकेशन से संबंधित था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा था, ठीक है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं से ये योजना था। दूसरा, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। नेक्स्ट, हर घर बिजली। हर घर बिजली, हर घर नल का जल। बिजली और नल का जल में अंतर नहीं आ रहा है? हर घर बिजली अलग है, दूसरा है हर घर नल का जल। नेक्स्ट, घर तक पक्की गली, घर तक पक्की गली, हाइफन देके, नालियां, ठीक है। नेक्स्ट, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। सम्मान। नेक्स्ट, अवसर बढ़े, आगे पढ़ें। आगे पढ़ें। अब इसमें क्या था कि जैसे एक पैरामेडिकल जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उनको बनाना था, पॉलिटेक्निक का इंस्टीट्यूट जो है हर घर में, घर करें, हर जिले में आपको ये बनाना था जो अवसर बढ़े। और इसमें भी ये जो सात निश्चय था, ये एक एक प्रोग्राम का भी काफी जो है आपको एक व्यापकता को लिए हुए था। नहीं, ये जो है ना, अब ये जो पार्ट 2 है, जैसे कि ये जो पार्ट 1 जो था 2015 से 20, ये गुड गवर्नेंस जो है, इसको ध्यान में रखते हुए सात निश्चय। अब ये सात निश्चय में इसके अंदर भी जो है ना बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, जैसे पहला वाला स्कीम आपने क्या लिखा है? हाँ, तो अब उसमें युवाओं को बल, तो उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया, या ये जो है और ज्यादा। अब इसका सात निश्चय पार्ट 2 लिखिए। ये पार्ट 1 था, हाँ
अब इसी काम को आगे देखते हुए 2020 से 25 को इसका पार्ट 2 कर दिया गया। 7 निश्चय का युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी। यही जो आप सिंचाई का पानी बोल रहे थे ना अभी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आ रहा है, वो भी आ रहा है। लिखिए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। हाँ, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, तो ये जो है, ये 7 निश्चय जो है 2020 से 2025 तक जो है ये चलाए गए। और इसके पीछे जो पर्पस क्या था, न्याय के साथ विकास सिद्धांत, मतलब डेवलपमेंट विथ जस्टिस, है ना, कि विकास तो हो ही रहा है लेकिन जस्टिस। और जस्टिस कौन सा जस्टिस, कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, जो आपका, हाँ, जो आप लोग ये पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो अब इसमें एक और उसमें लिखिए, अंडर विकास बिहार विकास मिशन, सेवन submission are implemented for the monitoring of the schemes। इन स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए, किनको? 7 निश्चय को, ऑफ द 7 निश्चय। These submissions are कौन कौन से सबमिशन है? पहला लिखिए, यूथ सबमिशन। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सबमिशन। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सबमिशन। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट सबमिशन, एग्रीकल्चर सबमिशन, इंडस्ट्री एंड बिजनेस सबमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सबमिशन, बिजनेस सबमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सबमिशन, लोक संवाद एंड ब्रांड बिहार सबमिशन। ब्रांड बिहार।
ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, किनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, ये 7 निश्चय के। अब इसमें देखिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो पहले सीधे ये पूछ दिया कि इनमें से कौन 7 निश्चय का नहीं पार्ट है और उसमें कुछ जोड़ दिया है। दूसरा कि 7 निश्चय पार्ट 1 में क्या था और 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या जो उसमें जोड़ा गया। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, हर घर नल, और इसमें क्या है, हर खेत को सिंचाई के लिए। ठीक है, इसी तरह से आपको ये, इसके अलावे ये जो भी 7 निश्चय के जो प्रोग्राम है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो बने हैं। जैसे कि आपको यही पॉलिटेक्निक कॉलेज का बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बनाना है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक मेडिकल कॉलेज जो है, पैरामेडिकल कॉलेज जो है ये बनाना है। ठीक है, अब अवसर कैसे बढ़ेगा, जैसे विद्यार्थी के, युवा के बारे में बताया जा रहा है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, इसके बाद से जो अनसिक्योर्ड लोन जो है, मतलब एजुकेशन लोन के तौर पे उनको कोई कोलेट्रल नहीं देना है एक सर्टेन लिमिट तक, है ना, ये सब चीजें जो हैं। इसके अलावे भी और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजना जो है ये चलाया जा रहा है। ठीक है, जो लोग वंचित वर्ग के लोग हैं, या फिर आपके ऐसे लोग जो है, जो मान लीजिए कि जो आपके ये आदिवासी समाज के हो गए, या फिर अदर जो हो गए, जैसे शेड्यूल कास्ट के जो लोग हो गए, इन लोग के लिए क्या परियोजना जो है ये चल रही है। इस पे मतलब कि काफी ध्यान से और बहुत मतलब गहराई से इसको पढ़ने की जरूरत है। ये सोशल डेवलपमेंट में इस तरह से ये क्वेश्चन जो आपके ये पूछे जाएंगे और पूछे ही जाएंगे, मतलब नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। 12th के पास जो है उसमें, हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो उसके लिए अप्लाई करना है। ऐसे ही जो है, हाँ, ऐसे ही जैसे कि विशेष तौर पे कि लड़कियों के लिए उनका, जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा को लेके कि उनका कितना फी लग रहा है, या उनका फी कहाँ कहाँ जो है मना, मतलब एकदम जो है उसको माफ कर दिया जा रहा है। हाँ, तो ये चीजें जो है आपको सोशल डेवलपमेंट पे ये काफी जो है ये पूछा जाएगा। इसके अलावा जो बिहार का और भी, अगर मतलब बीपीएससी अगर आप लोग दे रहे हैं, तो बिहार का और भी जो भी आपका डेवलपमेंट, जैसे कि जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव है उससे क्वेश्चन जो है, या जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो वेबसाइट है उसको आप लोग ध्यान से बीच बीच में अपडेट करते रहिएगा, मतलब कि देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। और बाकी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका स्कीम जो है, इसमें से क्वेश्चन जो है रहना ही रहना है। अब इस पे कि ये इतना ही नहीं है, ये एक मतलब क्या है, एक क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, उसमें कई तरह से भी पूछा जा सकता है। तो कम से कम उस टॉपिक पे और भी कोई आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले, या कोई डेवलपमेंट या कोई चेंज कर दिया गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को ये करना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का ये गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम जो है वो भी आपका ये कंप्लीट होता है। कोई और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? इसको पढ़ने की जरूरत है, और इस पे और ज्यादा जो है क्वेश्चंस जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा वो ज्यादा जरूरी है ना। जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोग को ये क्लैरिटी आएगी।